Hello everyone, very good afternoon. Are you able to hear me? Are you able to see me? Yes, sir. Superb. So just first day, so let's wait for 5 minutes. Some more people are actually. I have planned for 20 people, but 25 people have registered. But some people will join, some people have exams. But let's see. We'll wait for 2-3 more minutes and we'll start. Okay. I'll give a very brief introduction about what this class is about, what can you expect, and how it will go. Okay. So who we have? Let me check. Lohit, we have. Hi, Lohit. Hi, sir. And this going class is going to be very interactive. You will not see that kind of class. Whenever do I do any class, it will Yes, be sir. super interactive. You will talk to me a lot, everybody. So Yes, sir. Lohit, welcome. We have Keshav, Nityashri, Bunty, Hi, Manjishta. How are you, Manjishta? How are you, Nityashri? You people are my students, regular. sir, I'm good. Good one. Ramu, welcome. Jai Surya, Vasu. Okay. So welcome everybody. We'll wait for 2-3 minutes. Before that, till that, I'll complete my introduction and I'll tell you what to expect from this class. Okay. Okay, sir. So first of all, my introduction. Some people know me who are my regular students, but many of you are very new to this. So anyway, you can see me, but my photo also is there on the screen. And first of all, I want to tell you this class हमको लोग करेंगे simple English and some mix of Hindi. But if anybody is totally from Hindi background, don't worry. You can ask any question in Hindi. I am a native from Hindi from Rajasthan, so I know Hindi. So हम लोग हिंदी में भी बात कर सकते हैं, but classes होगी simple English में with Hindi mix. Okay. But you can feel free to ask question in Hindi or English. Now, as you can see the screen, my name is Rakesh Agrawal. Currently, I am in Pune. If you see my background, I worked for 18 years for IT industry. You have heard Samsung, Motorola, right? And I am teaching from last 12 years. And I am teaching only maths. And you will see that maths, I really love it. Really love it. And I feel maths is very easy if you do it right way. Okay. So, and my objective of this will be that let's see if I can make maths easy for you, simple for you. Okay. Now coming to my education background, so I done my master MTech from IIT Kharagpur in 2001. It's almost 20 years. And as you see, I teach mostly Vedic maths, speed maths, and the core mathematics, advanced maths. If you see, most of like I mean, you can say GMAT, CAT, or IITG or NDA, whatever you talk about. Okay. But maths, I mostly focus on maths. Okay, so people are still joining. Good. So now this is my introduction. Anybody can any question can ask me. Basic introduction. Very free to ask me question. So what this course is about? This course का main focus क्या है? Let me show you the main focus of this course. Where is my same poster I shared with you? I'll put that on the screen and then we can talk about this for 2 minutes. ये पोस्टर मैंने सबके साथ शेयर किया है. Screen 1 second. Share screen. ये. So the primary objective of this is, yes, I call it class 12 maths, NDA and IITG. And I'll tell you why it's like that. Every Saturday, Sunday class hogi hai, 1 hour, approximately 2 months. Let's see how many topics you can cover in 2 months. Saturday, Sundays, okay? 2 p.m. on Zoom on the same thing. No link will not change, password will not change. You can join the same link every Saturday, Sunday. Unless change, I will tell you if it change hota hai to. So focus of this is, the topic is given यहाँ पे. But I have very keen focus on this. क्या होगा? To make it very simple maths, to make it easy, we'll start from basic. कई लोगों ने पूछा है सर basic से start होगा क्या नहीं? Yes, we start from basic and important topics will cover because you see the integration पूरा एक इंटीग्रेट करने में 2 महीने लगते हैं. So we'll do important topics from exam perspective, from the concept perspective. And if you talk about NDA, if you talk about IITG what it requires? Clear concept, very depth knowledge, but clear concept. What NDA requires? How you can solve problem easily, quickly. So you know concept. तो और focus हमारा होगा concept, understanding कि कोई भी topic का actual meaning क्या है, how to solve problems in a better way. ठीक है? So we'll cover matrices, determinants, probability, integral calculus and definite integral in a little more deep. Differential calculus, yes. Differential equations. These are all core topic of class 12. Continuity differential, we will touch upon it. Application of derivative, yes. And application of integral. That is the objective. That is also this too much for 2 months because it's a big topic. Okay. Any question, anyone? एक और चीज, it's a live class. You should have pen and paper जिससे कि तुम लिख सको. You can start writing, take photo, take notes, whatever.
Don't expect any notes, any videos. I clearly said, but better is notes बनाते जाओ, क्वेश्चन पूछते जाओ. Clear है? Anybody, any question? Sir. All good? Yes, please. कोई बोल रहा है कुछ? हम जो क्लास करने वाले हैं वो करेंगे व्हाइट बोर्ड पे. मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल बी ऑन म्यूट. तो अभी मैं म्यूट करने वाला हूं सबको. ओके, पीपल आर जॉइनिंग स्टिल. सो एवरीबॉडी विल बी म्यूट. किसी को कोई क्वेश्चन पूछा चैट पे बोले, या फिर रेज हैंड देयर, और वीडियो पे हाथ है तो विल आई विल आंसर दैट क्वेश्चन. सो 3 modes will use. पहले हम यूज करेंगे व्हाइट बोर्ड, जहां पे कि आई विल एक्सप्लेन द कांसेप्ट, एक्सप्लेन द टॉपिक, विल सॉल्व प्रॉब्लम्स. फिर चैट बॉक्स जहां पे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, तुम लोग आंसर करोगे. और फिर ऑडियो जहां पे कि एनीबॉडी एनी क्वेश्चन, या फिर मुझे किसी से बात करना है, तो आई विल ओपन द ऑडियो एंड यू विल टॉक विद मी. ठीक है? ऑल गुड टू गो. सिरोश, सतीश जॉइंड जस्ट नाउ. सो इट्स ऑलरेडी 12. हाउ मच? 5 मिनट हो गए, राइट? 6-7 मिनट हो गए. आई थिंक वी हाउ मच पीपल वी हैव? We still 12 only, half of the audience. ठीक है, we'll start it. हाँ, anybody any question? किसी को कोई क्वेश्चन है? लोहित, कोई क्वेश्चन है क्या? हाथ तुमने हैंड ऊपर किया है. हाँ सर. बोलो लोहित. सर मतलब मैं अभी क्लास 12 में पढ़ रहा हूँ. क्लास 11 का मतलब कॉन्सेप्ट इतना अच्छे से नहीं आता है. जरूरत नहीं है. जी सर. कोई क्लास 11 का कंसेप्ट का जरूरत नहीं है. हम बिल्कुल बेसिक से करेंगे. हाँ, पर बेसिक मैथ्स का कंसेप्ट को जरूरत है, जो क्लास 7, 8, 9, 10 जो हम लोग करते हैं, बेसिक को जरूरत पड़ेगा. जी ठीक है? जी सर. और जहाँ पे कहीं डाउट लगता है तो पूछो. पर कोई सब कुछ नए टॉपिक्स हैं, तो इसलिए मैं टॉपिक सिलेक्ट वैसे ही किए कि यू विल नॉट नीड दैट. ओके, जी सर. थैंक यू सर. चलो, तो लेट्स स्टार्ट. सो एनीबॉडी अगर कुछ क्वेश्चन है तो चैट पे भी बोल सकता है. और लेकिन एक बात और है, प्लीज मेक दिस क्लास वेरी इंटरेक्टिव. वेरी इंटरेक्टिव मतलब जब भी मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं, हेजिटेट मत करो. कोई एग्जाम तो है नहीं, कोई टेस्ट तो है नहीं है, तो जो भी क्वेश्चन पूछो, जो भी अपने को लगता है, एक्सप्रेस करो. देयर नथिंग रॉन्ग एंड राइट. एक्सप्रेस व्हाटएवर आज जो भी तुम्हें लगता है, एंड देन वी कैन स्टार्ट बिल्डिंग अपॉन दैट. टुडे एंड टुमारो माय फोकस इज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मैट्रिसेस, मैट्रिक्स. यहां से स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले बताओ, कोई भी, बंटी, केशव, सतीश, लोहित, एनीबॉडी, रामू, व्हाट इज मैट्रिक्स? तो पढ़ा होगा किसी लोगों ने तो 12th में, अगर कोई 12th में है यहाँ पे. तो मैट्रिक्स होता क्या है? एंड मैट्रिक्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एनडीए 12th क्लास एंड फॉर जीएल. व्हाट इज द मैट्रिक्स? एनी आइडिया? किसी को है कोई आइडिया मैट्रिक्स होता क्या है? इट्स वेरी न्यू टॉपिक. क्लास 11th में नहीं होता, कई जगह सीबीएसई बोर्ड में क्लास 12th में है. तो कोई कुछ बोल रहा है? अरेंजमेंट ऑफ एंट्रीज, जय सूर्या बोल रहा है. बंटी, तुम कुछ बोल रहे हो? यस बंटी, टेल मी. अरेंजमेंट ऑफ नंबर. तो मैट्रिक्स क्या होता है? कोई भी सेट ऑफ नंबर्स, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम. हाँ, पर कई लोगों को लगता है करे सब सिर्फ नंबर. नो, with though we say it's number, it can be real number, image number, it can also be alphanumeric things, it can be alphabets, it can be numbers with alphabets. but किसी भी नंबर या सेट ऑफ नंबर्स को रोज में और कॉलम्स में अरेंज करेंगे तो वो बन गया हमारा मैट्रिक्स. फॉर एग्जांपल, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं. आई एम गोइंग टू रफ हैंड दिस, सो ये डायग्राम, डोंट गो विद माय ड्राइंग विल बी बैड, कंसेप्ट विल बी क्लियर. ओके, तो 2 स्क्वायर ब्रैकेट लेते हैं, उसके बीच में मैं लिख दिया 3, 2, 1, 5. ये सेट ऑफ नंबर्स है. कैसे अरेंज कर दिए मैंने? रोज में, कॉलम्स में. रोज किसको बोलते हैं? मोस्ट ऑफ विल बी नोइंग. रोज मतलब ये रोज, ये रोज. कितनी रो है? 2 रोज. कॉलम्स जो खड़े होते हैं, कॉलम्स. तो ये मैट्रिक्स हो गया हमारा. उसमें रोज भी है, कॉलम्स भी है. क्लियर है? मैट्रिक्स मतलब सेट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स. ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन मैट्रिक्स का हुआ. बट मैट्रिक्स इज मच मोर देन दैट. मैट्रिक्स होता क्या है? जरूरी नहीं कि हमारे रोज और कॉलम्स बराबर हो. ये भी हो सकता है अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, इफ आई राइट लाइक दिस, और मैं सपोज नंबर लिख रहा हूं यहाँ पे 1, 4, 7, 5, 3, 2. लोहित, इसमें कितने रोज है, कितने कॉलम्स है? नो, आई एम गेटिंग अनम्यूट एवरीबॉडी. सो गाइस, आई एम अनम्यूटिंग एवरीबॉडी, बट जिसको मैं बोलूं वही बोले, जिससे कि कोई शोर नहीं हो. ओके, सो एवरीबॉडी अनम्यूटेड नाउ. जिसका नाम लूंगा वो बोलेगा. सो ये मैट्रिक्स है या नहीं? जी सर. कितने रोज है, कितने कॉलम्स है? सर 3 rows and 2 columns. टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 6. तो नंबर एलिमेंट्स क्या होता है? जितने रो, देखो 1,
और दो, दो तो रो हो गए, जी तो दो रो। कॉलम्स कितने हैं? 1 2 Two. 3 इंटू Three. 3, तो ये हो गया 2 इंटू 3 6 एलिमेंट्स। तो मैट्रिक्स के अंदर जो भी होता है उसको बोलते हैं एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक एलिमेंट हो गया, ये एक एलिमेंट हो गया, ये एक एलिमेंट हो गया, दिस इज आल्सो एलिमेंट, दिस इज आल्सो एलिमेंट, दिस इज आल्सो एलिमेंट। So this matrix is 6 element matrix with 2 rows and 3 columns. Now why I am putting so much focus on rows and columns? क्योंकि सारा पूरा मैट्रिक्स उस पर डिपेंड है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूं द स्टैंडर्ड वे ऑफ m by n, इसको बोलते हैं m by n मैट्रिक्स, मतलब m हुआ नंबर ऑफ रोज, n हुआ नंबर ऑफ कॉलम। लिसन केयरफुली, m मतलब नंबर ऑफ रोज, ये स्टैंडर्ड वे ऑफ राइटिंग है, ये है नंबर ऑफ कॉलम्स। m by n मैट्रिक्स, और उसका ऑर्डर भी ऐसे ही होता है, हम ऑर्डर पे आएंगे। बट इफ m by n मैट्रिक्स मींस नंबर ऑफ रोज इज n, नंबर ऑफ कॉलम्स इज n। अगर मैं इसको ऐसे बोलूं, इफ आई पुट अ लाइक दिस a matrix which is called as say 1 1 1, और अंदर कुछ भी एलिमेंट हो सकता है, 1 0 नेगेटिव, डज नॉट मैटर, 2, मैं यहाँ पे a भी लिख सकता हूँ, डज नॉट मैटर एट ऑल। अब ये बताओ कितने रोज है इसमें? 2 रोज। Two rows. कॉलम कितने हैं? 3। Three columns. तो हम इसको बोलेंगे 2 by 3 मैट्रिक्स। रो को हमेशा पहले बोलेंगे, रो को हमेशा। सी नो पे लॉट ऑफ पीपल आर कॉलिंग फॉर रजिस्ट्रेशन, मैं कल से बोल रहा हूं, पीपल आर लाइक सो 2 rows 3 columns, और हमेशा वी ऑलवेज यूज रोज फर्स्ट, तो उसको बोलेंगे 2 by 3 मैट्रिक्स। जी क्लियर है? इट इज नॉट 3 by 2, 2 by 3। 3 by 2 मैट्रिक्स ऐसा होगा जहां पे कि कॉलम दो ही होंगे, जैसे कि ये बना लिया, एक और ये बना लिया, एक और ये बना लिया। अब इसमें क्या हो गया? 1 2 3 तो रोज हो गए, 2 कॉलम्स हो गए। क्लियर है? वेरी सिंपल है। मैट्रिक्स तो क्या होता है? व्हाट इज अ मैट्रिक्स? व्हाट आर द एलिमेंट्स? व्हाट इज द वे ऑफ सेइंग मैट्रिक्स? दिस इज 2 by 3 मैट्रिक्स, m by n मैट्रिक्स। नाउ द पॉइंट इज, 2 cross 3 भी तो बोल सकते हैं इसको। हाँ 2 क्रॉस 3 भी बोल सकते हैं, बट स्टैंडर्ड है 2 by 3 बोल सकते हैं। 2 ओके क्रॉस 3 ऑर्डर ऑफ 2 and 3, बट स्टैंडर्ड वे इज 2 by 3। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थिंग बिफोर आई गो, फिर अगर इस एलिमेंट का नाम करना है तो वी यूज समथिंग कॉल्ड INJ। वो ध्यान रखना, आई और जे यूज करते हैं। आई होता है रो का नंबर, जे होता है कॉलम का नंबर। बहुत ध्यान से, मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूं यहाँ पे, तो अगर वो समझ में आ गया तो इट्स वेरी इजी। मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूं यहाँ पे, लेट मी मेक ए प्रॉपर डायग्राम नाउ। ओके, और ये फर्क है एक्चुअल बोर्ड और इसमें, ठीक है? दिस इज वन थिंग। एंड सपोज इफ आई राइट समथिंग, ले यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, 2 है, 6 है, 1 है, 4 है। नाउ टेल मी बंटी, ये कौन से बाय कौन सा मैट्रिक्स है? 3 cross 2 सर जी। 3 क्रॉस 2, बिकॉज 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। अब आते हैं एलिमेंट का नंबरिंग। एलिमेंट का नंबरिंग देखो ऐसे होता है, नाम, जो नामकरण बोल सकते हैं हम उसको हिंदी में। ध्यान से देखो सब लोग, ठीक है? इज एनीबॉडी इज एनीथिंग? 3 by 2 मैट्रिक्स, आदित्य सूर्यांश सिंह, यस सूर्यांश, गुड। सो नेमिंग कैसे होता है? मैंने बोला ना आई और जे यूज करते हैं, मतलब कि यहाँ पे मैं लिख देता हूं ए, उसका पोस्टस्क्रिप्ट आई, AIJ, या फिर मैं बोल सकता हूं 1 1, इसको बोल सकता हूं। मैं बताऊंगा 1 1 क्यों बोल रहे हैं, 1 2 क्यों बोल रहे हैं, 1 2। मैं इसको बोल सकता हूं 2 1 A 2 2 A 3 1, क्योंकि जो IIT में क्वेश्चन आते हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म के आते हैं कि AIJ, व्हाट इज AIJ, तो बताता हूं क्या होता है। तो इज ऑल एलिमेंट्स, ऊपर 6 एलिमेंट्स है, नीचे भी 6 एलिमेंट्स है। क्लियर है? अब देखो इसको, व्हाई आई एम सेइंग A1 1 1 1, मतलब 1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का है, राइट? यस सर। तो 1 1। ये कौन सा है? फर्स्ट रो लेकिन सेकंड कॉलम। तो देखो ये 1 मतलब फर्स्ट रो, 2 मतलब सेकंड कॉलम। ये सेकंड रो बट फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो के लिए 2 आ गया, कॉलम के लिए तो A2 1। तो ये एलिमेंट होगा A2 1।
ये एलिमेंट क्या हुआ, कौन सा रो है, सेकेंड, कॉलम कौन सा है, सेकेंड, सो A22। सिमिलरली ये कौन सा हुआ, इसका क्या होगा, A31 और ये होगा A32। इसलिए हम लोग बोलते हैं द स्टैंडर्ड वे ऑफ राइटिंग मैट्रिक्स AIJ। आई मतलब रो का नंबर, जे मतलब कॉलम का नंबर। क्लियर है, व्हाट इज AIJ? मैं आपसे कुछ अब क्वेश्चन पूछूंगा, सबको चैट में आंसर देना है, ठीक है? इज इट क्लियर कि AIJ क्या होता है, A11, A12, A13, A14, A21, A2, व्हाट इज द मीनिंग? कोई डाउट है किसी को? क्लियर है तो चैट पे लिखो CC। CC मतलब क्रिस्टल क्लियर, नहीं तो डाउट पूछो मुझसे। क्लियर है तो लिखो CC, अदरवाइज से डाउट। परफेक्ट। नाउ इट्स अ स्मॉल क्विज फॉर यू, ठीक है? स्मॉल क्विज फॉर यू। I am putting some matrix and let me write something. 2035 C17D 8 mute please Lohit, everybody mute, शोर हो रहा है। A और Y, ठीक है? Now everybody write what is the value of element, मैं एलिमेंट का से नंबर बताऊंगा। What is the value of A32? Write all chat, what is the value of the element A32? Let's see कितने लोग सही करते हैं। ऊपर मैट्रिक्स में what is A32 एलिमेंट? A32 is 9, correct? A32 मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम, you are right. What is the value of A23 element? टू थ्री मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम 7, वेरी गुड. What is the value of A51 element? What is the value of A51 element? Correct. Pritam, Aditya, Suryansh. No element exists like that. Correct. 5 और 5 rows नहीं है, तो you will say no element exists. Correct. You are right, Vatsal. Good. So that is what about matrix. Clear है? No, हम लोग जाएंगे. आज का प्लान काफी बड़ा है. एक घंटे में you have to do lot of. So matrix understood? No, very important thing. What are different types of matrix? There are so many types of matrix. Or believe me, many questions in your exam, in competitive exam, you get from types of matrix. And I am going to confuse you with lot of different questions. Okay? So understand every matrix type very, very, you can say focused way. Okay? Ready? GTG. If you are ready, say GTG. Means you are good to go to learn the types of matrix. We are going to do that, Suryansh. Good to go means you are ready. So let's start types of, and everybody start writing, please. First of all, let me write. I'll give you a lot of examples of matrix. Square से बाद में आएगा. Let me first talk about row matrix. नाम से पता पड़ता है रो मैट्रिक्स मतलब जिसमें सिर्फ रोज होंगी. रो मैट्रिक्स मीन्स ओनली रोज, मतलब लेट मी राइट इट हियर, मीन्स okay, people are joining now. Okay, means only one row. रो मैट्रिक्स मतलब सिर्फ रो होगी उसमें. What does it mean? कॉलम बहुत सारे हो सकते हैं. रो शुड बी वन. कॉलम कैन बी एनीथिंग. I'll come to that, Suryansh. For example, if I write like this, 1, 5, it's a row matrix. One row, 3 columns. Even if I like this is also a row matrix. इसका ऑर्डर क्या है? वैसे सूर्याश ने बताया, but what is the order of this matrix? Row is 1, column is n. I told you, right? हाँ, 1 cross 5. और स्टैंडर्ड में लिखना हो तो रो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? 1 by n. क्योंकि m तो होता है नंबर ऑफ रोज, n होता है नंबर ऑफ कॉलम्स. तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है 1 by n. यहां पे हमारा 5 है तो 1 by 5. सिंपल. Now tell me everybody,
Tell me everybody, carefully see and tell me, is it a row matrix or not? Write all chat, yes or no. Is it a row matrix, yes or no? Suryan says yes, Mahalakshmi says yes, Vasu says yes, Lohit says yes. Keep writing. Keshav says yes, Bunty. Good, because column होगा एक, it's a special thing. But row तो एक ही है. So this is also a row matrix. इसका order क्या होगा? 1 on 1. Very good, Suryansh. Clear? Second one. ऐसे होगा column matrix. Column matrix में क्या होगा? Obviously नाम से ही पता पड़ रहा है, एक ही कॉलम होगा. For example, I have to use the marker for this. If I put like this, 1, 2, 5, it's a column matrix, correct? Right, Keshav? M cross 1, its order. Yes, Suryansh. So 1 to 5 is a column matrix. तो इसका order क्या हो गया? 3 by 1. Similarly, if I write like this, is it a column matrix or not? तो ये column matrix है या row matrix है? Tell me everybody, is it row matrix or column matrix? Both. Is it column matrix also? Row matrix also. Right. So row matrix, one row, column matrix, one column. Does not matter of element. Element अंदर 0 हो, 1 हो, X हो, Y हो, does not matter. Third type, the most important type, square matrix. मतलब क्या होगा? Number of rows, और मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो m equal to n. Number of rows and number of column will be equal. For example, if I make a matrix like this, and if I write 1, 4, 7, 3, it's a square matrix because 2 rows, 2 columns. So it's a square matrix or square matrix of type 2 by 2. But because square matrix है दोनों बराबर है, we also say square matrix of order 2. No need to mention 2 by 2 also. So square matrix of order 2 मतलब कि 2 by 2 ही होगा, right? So we also say square matrix of order 2 by 2 or order 2. If I write like this, 1, 0, 4, 1, 1, 2, 2, 1, 4, just I'm writing bad writing, but concept wise you understand. So this is also a square matrix of order 3. Everybody 3 by 3, yes Mahalakshmi. Or you can say order 3. Order 3 भी बोल सकते हैं. And if I ask you square matrix of order 3, right? But if I ask you like this, is it really a square matrix? Yes or no? Mahalakshmi, explain करो ये square matrix क्यों है? Unmute and explain. Quickly, quickly, quickly. Mahalakshmi. Unmute, unmute. Why it's a square matrix? मंजिष्ठा बताओ. Because इसमें 1 row है, 1 column है, दोनों बराबर है. So you can say square matrix. Square मतलब rows and columns बराबर है. Clear है? Row matrix, column matrix, square matrix. Now, fourth one is diagonal matrix. Now, diagonal matrix is like this. A very important concept. Suppose if I say 5, 0, and suppose if I say again 0, 0, 5, 0, 3, or say 0, 0, 3. Can you see something? What is happening here? Diagonal matrix, the condition is principal diagonal. Elements are non-zero elements. उसके अलावा सारे एलिमेंट्स आर 0. इसमें से ये भी 0 हो सकता है. Diagonal also.
बट द कंडीशन इज जो दूसरा एलिमेंट है नॉन डायगोनल एलिमेंट वो हमेशा जीरो होंगे. जय सूर्या प्लीज आस्क मी एनी डाउट. So diagonal matrix means whose non-diagonal elements are zero. अगर मैं इसको ऐसा लिखूं 7 0 0 5 ये भी diagonal matrix है. अगर मैं ऐसा लिखूं 4 0 0 0 you can call this also diagonal matrix, special diagonal matrix. So Sirosh, diagonal matrix मतलब इस डायगोनल को छोड़ के ऑल अदर एलिमेंट्स आर जीरो. ये देखो बाकी सब जीरो दिख रहे हैं ना. ये देखो ये जीरो है सारे. डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के ऑल अदर एलिमेंट्स आर जीरो. दैट इज नोन एज डायगोनल मैट्रिक्स. Okay. Okay. Thank you, sir. Now the important point here is सर जी अगर प्रिंसिपल डायगोनल जीरो हुए तो प्रिंसिपल डायगोनल जीरो हुए तो फिर वो नहीं होगा. इससे स्पेशल केस. आई विल कम टू दैट नल मैट्रिक्स. वो डायगोनल मैट्रिक्स तो नहीं रहेगा ना फिर. वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा. देखो नल मैट्रिक्स की बात अलग है. बट अगर मैं ऐसा लिख दूं कि यहाँ पे जीरो लिख दिया, यहाँ जीरो लिख दिया, यहाँ जीरो लिख दिया, तो यहाँ पे कोई एलिमेंट हो गया, तो यू कैन नॉट से इट इज डायगोनल. इट इज नॉट. डायगोनल मैट्रिक्स का फंडा क्या है? एक्सेप्ट द डायगोनल एलिमेंट्स अदर एलिमेंट्स आर जीरो. लोहित आस्क मी. सर डायगोनल क्या सर, मतलब 1 1 फिर 2 2 और 3 3 होगा, ऐसा भी तो हो सकता है. मैं आ रहा हूं उस पर, मैं उस पर आ रहा हूं. देखो जी. डेफिनेशन समझो क्या है. डायगोनल मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स उसके एलिमेंट अदर देन डायगोनल आर जीरो. सर मेरा डायगोनल को एक छोड़ के बाकी एलिमेंट जीरो है. ये है डेफिनेशन. सर मेरा एक क्वेश्चन है सर. यस प्लीज. सर डिफरेंस बिटवीन रो मैट्रिक्स एंड स्क्वायर मैट्रिक्स में आपने कहा था कि एक ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर स्क्वायर लिखने के बाद आपने कहा था कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है करके. सपोज ये ऐसा है, ये बोल रहे हो तुम? हाँ राइट, दिस ओके वन. तो आपने ये कहा था कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स. ओके. लेकिन आपने ये भी कहा था कि रो मैट्रिक्स के पहले एग्जांपल में आपने जीरो लिखकर आपने ये कहा था कि वन रो एंड वन कॉलम. ऐसा राइट. देखो ये जो मैट्रिक्स दिख रहा है, हाँ हाँ इट्स ए रो मैट्रिक्स, इट्स ए कॉलम Right. मैट्रिक्स, इट्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स मतलब एक रो, कॉलम मैट्रिक्स Okay. मतलब एक कॉलम, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब रो और कॉलम बराबर. बस एक ही कंडीशन में हम तीनों हो तीनों सकता है. हाँ अभी वही कंफ्यूजन. अभी मैं 3 टाइप का मैट्रिक्स बताऊंगा, फिर कंफ्यूजन बढ़ेगा. तो यू कैन आस्क. पॉइंट इज एक चीज को अलग तरह से बोल सकते हैं. ओके null matrix is also diagonal matrix of a special case where diagonal all elements are zero. So I'll come to null matrix. But overall objective is diagonal matrix क्या होता है? Diagonal के अलावा बाकी सारे एलिमेंट जीरो है. ओके. थैंक यू सर. Thank you. And guys, this is very important because once you said all of this, Okay. I'm coming to this Mahalakshmi. And guys, this type of matrix is very important for computer exam because they ask all this question like this. कोई example दे दिया Sir जी. बताओ. Yes, please. प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट नहीं, बस अगर उसमें अगर एक एलिमेंट भी जीरो हुआ तो वो डायगोनल रहेगा कि नहीं रहेगा फिर? रहेगा. ओके. देखो क्वेश्चन डायगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है? जो डायगोनल के एलिमेंट्स नहीं है वो जीरो होने चाहिए. डायगोनल पे डिपेंड नहीं कर रहा है, बाकी पे डिपेंड कर रहा है. फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूं. यस सर. सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए, यहाँ पे लिखता हूँ 0, यहाँ पे लिखता हूँ 0, यहाँ पे लिखता हूँ 0, यहाँ लिखता हूँ b, यहाँ लिखता हूँ 0, यहाँ लिखता हूँ 2, यहाँ लिखता हूँ 0, यहाँ लिखता हूँ c. अब देखो डेफिनेशन क्या है? इस डायगोनल को छोड़ दो, इसके अलावा अगर सारे एलिमेंट जीरो है तो वो डायगोनल है. अब यहाँ पे वो 2 एक्स्ट्रा आ रहा है तो डायगोनल नहीं है. तो डायगोनल से मैटर नहीं करता है. अगर डायगोनल जीरो हो भी सकता, नहीं भी हो सकते. जैसे अगर डायगोनल सारे जीरो है तो नल मैट्रिक्स बन गया. क्लियर है? सर एक डाउट है सर. एक मिनट. तो बिकॉज ये एक्स्ट्रा एलिमेंट आ रहा है जो जीरो नहीं है तो वो डायगोनल नहीं है. डायगोनल एलिमेंट का डेफिनेशन ये है, मैं तुम्हें बोले एक मिनट. ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर
when I is not equal to j. मतलब क्या कि जो डायगोनल एलिमेंट है उसके अलावा सारे एलिमेंट जीरो है तो डायगोनल. आस्क मी नाउ, प्लीज आस्क मी क्वेश्चन. कोई पूछ रहा था? हाँ सर. यस प्लीज. सर डायगोनल सिर्फ क्या अपर राइट से लोअर लेफ्ट तक, मतलब A11 हाँ. A21. डायगोनल हम जब बात करते हैं जनरली हम बात करते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, A11 A22 A33 A44 A55 like this. जी ऐसा भी तो हो सकता है सर, मतलब अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो उसमें A31 मुझे पता है A1. तुम ये वाला बोल रहे हो. जी जी सर. वी ऑलवेज टॉक अबाउट प्रिंसिपल डायगोनल. ये वाला वो अगर वैसा हो गया तो तो नहीं है. उसको बोल सकते हैं. तो नहीं है. दैट इज नॉट डायगोनल मैट्रिक्स. ओह ठीक है सर. It's a principal diagonal. Okay. Mahalakshmi, very good question. Now, before I answer the question of Mahalakshmi, now tell me everybody, for a matrix to be diagonal matrix, it must be a square matrix. Tell me true or false, everybody. अगर किसी मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स होना है तो वो स्क्वायर होना ही चाहिए. Is it true or false? So Mahalakshmi, I'll answer the question. Suryansh, you want to explain? Right, Keshav. Because diagonal हमें देखो, मैं कुछ चीज बताता हूँ. स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है. क्यों जरूरी है? बिकॉज अगर मैं मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं लिखता हूँ, सपोज मैं लिख देता हूँ ऐसा मैट्रिक्स 1 4 5 2 0 7, इसका डायगोनल कहाँ है? डायगोनल से स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है. यू कैन नॉट से कि सर ये डायगोनल है. नो, डायगोनल ऑलवेज हैपेंस ऑन ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स. अब एक क्वेश्चन पूछता हूँ आईआईटी लेवल का, मतलब इजी क्वेश्चन है. दिस मैट्रिक्स इज इट अ डायगोनल मैट्रिक्स और नॉट? बताओ. यस सर. इज इट डायगोनल मैट्रिक्स? टेल मी व्हाट you feel guys, everyone? यस. Somebody saying yes, somebody saying no. Suryansh, why no? Bunty saying yes, Jayasuri saying no. Why no? It is a diagonal matrix. क्योंकि इसमें एक diagonal element ही, बाकी सारे element तो है ही नहीं इसमें. Correct? It's not a square matrix. It's a square matrix, Jayasuriya. It is not a square matrix. It is a square matrix. One by one. Why it is not a square matrix? Jayasuriya, tell me. It is a square matrix. इसमें एक रो एक कॉलम है. स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों नहीं है ये? है. The matrix given is 2 by 3 matrix. Not this one. I am telling this top one. Okay, sir. It is a square matrix, yes, sir. हाँ, तो I am asking the top one. ये जो अभी मैं उसको रेड में डालने दो मुझे. People get confused. Okay. I am talking about this red in the top. Is it a square? Is it a diagonal matrix or not? यस सर. Yes. So everybody clear है? Yes, sir. Principal diagonal के अलावा बाकी elements has to be zero. Diagonal can or cannot be zero. That is a different thing. Clear? यस सर. Anybody any question? So now tell me, if I put a matrix like this, 5 0 0 0, is it diagonal matrix or not? Maybe yes. Yes. Maybe yes or yes. Sir, here one diagonal element is zero ना sir. उससे क्या फर्क पड़ता है? डेफिनेशन क्या है? डायगोनल को Not- छोड़ के सारे जीरो हाँ, होने चाहिए. देखो हाँ, मैं बार-बार तो- बोल रहा हूँ ये गाइस, इट्स अ कंसेप्ट जी। थिंग. डायगोनल को तो छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए. दैट इज द डेफिनेशन. डायगोनल जीरो हो नहीं हो फर्क नहीं पड़ता है. डायगोनल का सर कोई भी एक डिजिट मतलब एक एलिमेंट अगर मतलब नॉन जीरो है तो भी मतलब हो जाएगा. नो, ऐसा नहीं है. दोनों भी जीरो हो सकते हैं. फिर वो नल मैट्रिक्स बन जाता है. फिक्स हो जाएगा. हाँ वही तो. हाँ, पर वो भी डायगोनल मैट्रिक्स है. वो भी डायगोनल है. देखो हाँ, डायगोनल मैट्रिक्स का डिफरेंट डेफिनेशन समझ लो एक बार सब लोग. जी। जो डायगोनल होता है उसको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट जीरो है. जी अब डायगोनल होता जीरो हो या नहीं हो फर्क नहीं पड़ता है. जी. Okay? जी. Why I'm explaining this? Because अब हम लोग आ रहे हैं स्केलर मैट्रिक्स. All are related guys. Scalar matrix. So Vatsal, I already explained. प्रिंसिपल डायगोनल की बात कर रहे हैं, वो वाला डायगोनल मैट्रिक्स नहीं मानेंगे. लेफ्ट वाला.
ओके, नाउ स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? See, सारे इंपोर्टेंट है, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, समथिंग आई हैव टू एक्सप्लेन मोर. स्केलर मैट्रिक्स होता है when diagonal डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल. elements are equal. ध्यान रखो, नॉट वन केशव, वन तो भी आऊंगा मैं आइडेंटिटी पे. आइडेंटिटी इज डिफरेंट. स्केलर मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल, अगर मैं मैट्रिक्स लिख रहा हूं यहां पे, मैं बोल रहा हूं 4 0 0 4, ये स्केलर मैट्रिक्स है क्योंकि, और अगर डायगोनल की बात करूं गाइस, तो बाय डिफॉल्ट वी टॉक अबाउट प्रिंसिपल डायगोनल. ओके, सो Yes. डायगोनल एलिमेंट्स आर हियर इक्वल, सो इट्स Yes. स्केलर मैट्रिक्स. Yes. ठीक है, इट कैन बी एनीथिंग. ये अगर -4 है देन आल्सो ओके. So tell me, no, I'll make one statement. A null matrix, a null square matrix of order 2 is a scalar matrix, true or false? Give me the reason. A null square matrix of order 2A is a scalar matrix, yes or no, and why? Yes. कौन बताएगा इसको? लोहित बताएगा. जी सर. बोलो लोहित, क्यों? मतलब उसका डायगोनल एलिमेंट्स भी सेम है. क्योंकि दोनों 0 0 तो दोनों इक्वल है, तो 2 हो गया ये भी. जी. करेक्ट. जी सर. राइट मंजिष्ठा, राइट एवरीवन. अंडरस्टूड व्हाट इज स्केलर मैट्रिक्स? सारे एलिमेंट सेम हो. अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, फॉर एग्जांपल, इंस्टेड ऑफ राइटिंग, अगर मैं यहां इसके बदले ए कर दूं, डज नॉट मैटर, वो सेम होने चाहिए. एंड द अदर टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, व्हेन ऑल आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? All diagonal elements are 1. Means number 1. All elements are one. For example, all elements are one, all diagonal elements are one. Diagonal, yes sir. हाँ, हम लोग डायगोनल की बात कर रहे हैं. अब देखो इसमें ध्यान, इसको हम आईवी बोलते हैं, बात करेंगे उसके बारे में when we solve lot of problems. 1 0 3, sorry, 0 and 1. This is a identity matrix, a unit matrix. You are right. But the main point is, if I make a statement, all identity matrix are scalar matrix, true or false? True. Tell me on chat, everybody. All identity matrix are scalar matrix. Yes, it is true. Is it true? Yes sir. Yeah. All scalar matrix are identity matrix. Next question. All scalar matrix are identity matrix. True or false? Keshav, what do you say? Did not. सोचो, मैं लिख देता हूं यहाँ पे. True या false? All scalar matrix are identity matrix. False sir. False है? Yes sir. Everybody feels false, right? Obviously, scalar matrix में always same होना चाहिए. जरूरी नहीं कि 1 हो. Identity में 1 ही होना चाहिए. So it is false. It is false because it is not true. Now tell me another question on this. Identity matrix must be square matrix always. बताओ. True. True sir. True or false? True. True. क्लियर है माइंड में? स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये सारे रिलेटेड आपस में. वी टॉक आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लिखते हैं आई ऑफ ऑर्डर 2 और 3 और 4 और 5 डिपेंडिंग ऑन व्हिच ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स. सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑलवेज. नाउ टेल मी,
all identity नहीं, वो तुमने कर लिया. Before we come to more, null matrix is also a scalar matrix. Yes or no? Yes, sir. Is everyone perfectly okay on this? Yes, sir. Okay. Now let's talk about, and then I'll ask you some question in the end. We talked about scalar, diagonal, unit. परमार कैशव म्यूट करो. हाँ, प्लीज टेल मी किसका क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन पूछ रहा था? नो क्वेश्चंस? जस्ट यू हैव अ क्वेश्चन? नो. सो नल मैट्रिक्स सबको पता है, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो. यस प्लीज. सर जो लास्ट वाला क्वेश्चन था एक बार दोबारा रिपीट करना. स्क्रीन पे था जो. यस सर. ये वाला. सर आपने बोला नल मैट्रिक्स आल्सो स्केलर मैट्रिक्स. तो I'm नल asking. मैट्रिक्स तो सर नल मैट्रिक्स तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकते हैं, तो वो तो स्केलर नहीं होगे ना. नल मैट्रिक्स सारे स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं. नल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स. यस. ओके सर. ओके. इसीलिए ये सारे स्क्वायर की, जब से स्क्वायर शुरू किया हमने, स्क्वायर, डायगोनल, स्केलर, आइडेंटिटी, वी ऑल टॉक अबाउट स्क्वायर मैट्रिक्स ओनली. ओके अब आ रहे हैं हम लोग, नो वी आर कमिंग टू another type which is less popular but useful for exam perspective. Upper triangular matrix. कौन बताएगा ये? All elements are zero प्रिंसिपल डायगोनल के अपर एलिमेंट्स except non-zero, principal बाकी सब zero. प्रिंसिपल एलिमेंट अच्छे से बताओ वापस. प्रिंसिपल एलिमेंट के ऊपर वाले एलिमेंट्स एलिमेंट्स नॉन जीरो, बाकी सारे जीरो. और प्रिंसिपल डायगोनल के खुद के एलिमेंट्स वो नॉन जीरो. वो भी जीरो हो सकते. देखो मैं बताता हूँ. यू आर राइट. सपोज मैंने लिया 1 2 3 और 0 4 5 0 0 6. हाँ, जैसे आई विल कम टू दैट पॉइंट. ये है, ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है. प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट, और यू कैन से I greater than j elements are zeros, right Jayasuriya? That is the point. That is the technical way of writing. कि I greater than j मतलब a ij where equal to 0 when I is greater than j. That is the meaning of upper triangular. अब उसके इसका मतलब ये नहीं है कि इनमें से कोई जीरो नहीं हो सकता है. वो सेम बात है, हो सकता है, डजंट मैटर. मेन अबाउट दिस नो. तो कैसे, दैट्स द पॉइंट. आई इक्वल टू जो वाला एलिमेंट हो नहीं हो फर्क नहीं पड़ता है, उसके ये वाले एलिमेंट तो जीरो होने चाहिए. दैट इज द पॉइंट. ओके. एक्चुअली इसका रिवर्स है. मतलब रिवर्स ये है कि दिखता आपको ट्रायंगुलर नीचे है, पर अपर ट्रायंगुलर इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह एलिमेंट इसके नॉन जीरो होते हैं, इसलिए बोलते हैं. ए आई ग्रेटर देन जे आर जीरो. तो कैसे ए आई इक्वल टू जे नॉट नेसेसरी. क्लियर? डाउट है सर थोड़ा. हाँ पूछो. सर आई ग्रेटर देन जे मतलब समझ में नहीं आया. अरे हमने शुरू में बताया था आई ग्रेटर देन जे. तो मैं बताता हूँ, देखो. जी सर. इसको ये हटा देते हैं हम उसको. अरे क्या यार, मेरा वो मुझे वो कसरा डाला है. हाँ, एक बार बताओ इस एलिमेंट का नाम क्या है आई जे में? A11. A11. इसका A21. A21. ठीक है. हम भी इसका A31. A31 और इसका A32. A32. इन सब में ये जो तीनों एलिमेंट जो जीरो दिख रहे हैं ना, ये जी देखो यहाँ पे आई ग्रेटर देन जे है ना, यहाँ पे 2 ग्रेटर 1, ये जी देखो 3 ग्रेटर देन 1. जी 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 तो ये जी. तीन एलिमेंट ही है जो जीरो होंगे. बाकी ये सब देखो, ये A11 है, A12 है,
A13 है, यहाँ पे I स्मॉलर दे दिया, A11 A22 है, A23 है, जी ये जीरो। सिर्फ हाँ बात कर रहा है जहाँ पे AI ग्रेटर देन J है, जी वो वाला एलिमेंट जीरो है। जी सर, नहीं समझा? अभी समझ गया सर। पक्का है? जी सर। 2 1 3 1, अगर बड़ा मैट्रिक्स है तो और बड़ा। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ ऐसे, तो एक बड़ा सा मैट्रिक्स लिखता हूँ यहाँ पे 4 बाय 4 का, तो क्या होगा? तो इसको ले लिया 2 4 7 1। अब देखो, अब कौन सा एलिमेंट आएगा? रो 2, हाँ 2 1 A21 आएगा। रो 2 फर्स्ट कॉलम, तो क्या होगा? 8 1 जीरो होगा ना? जी तो यहाँ कुछ भी डाल दो, फर्क नहीं पड़ता है। ये जीरो। 0 3, हाँ, तो जहां भी रो का नंबर कॉलम से बड़ा है वो जीरो होने चाहिए। जी सर। मीनिंग ऑफ। सिमिलरली लोअर ट्रायंगुलर क्या होता है बताओ? I मतलब Aij is equal to 0 if J less J greater than I less than J। जिसमें लोअर इसमें ऊपर वाला हो जाएगा। हाँ, मतलब कि वही बात है, फिर से मैट्रिक्स बना देते हैं। 3 बाय 3 इजी है बनाने में, छोटा है वो बनाते हैं। सपोज में लिखा 7, ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, 4 कुछ भी लिख दो यहाँ पे, ये जीरो होगा, तो बाकी तो कुछ भी लिख दो, नहीं ये कुछ भी से 3। तो पॉइंट है ये हमारे एलिमेंट जीरो है, करेक्ट? यस सर। तो क्लियर। हालांकि इसमें ट्रायंगल ऊपर छोड़ देता बना था, इसको लोअर ट्रायंगल बोलते हैं। हालांकि ट्रायंगल छोटा वाला जीरो वाला ऊपर, इट्स रिवर्स वे ऑफ सेइंग। क्लियर है एवरीबॉडी? यस सर। ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स इन टर्म्स ऑफ दिस। कोई क्वेश्चन है किसी का? स्केलर, डायगोनल, नल, आइडेंटिटी, यूनिट? सर जी नल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगी क्या? Null matrix in this construct is square matrix. ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स? Yes. ओके। See, by definition, null matrix वो होती है इसके सारे एलिमेंट जीरो हो। But when we are talking about diagonal matrix, kn null matrix diagonal, kn देखो समझो, when we say kn null matrix भी है स्केलर मैट्रिक्स, kn null matrix भी है diagonal matrix, तो ऑब्वियसली उसके लिए स्क्वायर होना चाहिए, राइट? अदरवाइज नेसेसरी नहीं है। यस यस यस। करेक्ट, बट आई एम टॉकिंग अबाउट कॉन्टेक्स्ट अभी यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स का, इसलिए हुर्रे सर, आई गॉट इट मैट्रिक्स, सुपर। चलो, सो ये हो गया पूरे मैट्रिक्स टाइप। अब हम लोग एक और चीज करेंगे आज, वो है ऑपरेशन, विच इज वेरी इजी। व्हेन वी से मैट्रिक्स आर इक्वल, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स कब बोलते हैं हम लोग? जब उनके कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, नंबर ऑफ एलिमेंट से फर्क नहीं पड़ता है, corresponding elements are same और corresponding elements are equal. For example, मैंने एक मैट्रिक्स लिया, यहाँ पे सर जी आल्सो डिपेंड, ये हमेशा इसके ऑर्डर पे भी डिपेंड करेगा ना मैट्रिक्स के? ऑब्वियसली ऑर्डर तो सेम होना ही चाहिए। यस सर। ऑर्डर से ज्यादा ऑर्डर तो सेम होना ही चाहिए, पर अंदर के एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। हाँ वो भी होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो एलिमेंट का मतलब ही नहीं, क्योंकि ऑर्डर ही दोनों मैच नहीं हो रहे, राइट? यस सर। तो फॉर मैट्रिक्स मतलब सिंपल बोलो, उसका सिंपल कॉपी, डायरेक्ट कॉपी ये बोल सकते हैं। फोटोकॉपी। इट्स अ टोटल प्रॉपर कॉपी ऑफ द मैट्रिक्स, वही होगा तुम्हारा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिख दूं ए बी सी डी, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल जब ही होगा जब ए इक्वल टू 4 है, बी इक्वल टू 2 है, सी इक्वल टू 1 है और डी इक्वल टू 3 है, और किसी केस में नहीं होगा। So Jaysurya, your question is when a matrix is both upper and lower triangular matrix, it is a diagonal matrix. देखो सोचो, इसको कंसेप्ट वाइज सोचो कि अगर उसका लोअर ट्रायंगल जीरो हो गए, वहां भी जीरो हो गए और वो है, तो ऑब्वियसली बिकम अ डायगोनल मैट्रिक्स। यस, डायगोनल मैट्रिक्स में सिर्फ डायगोनल एलिमेंट के अलावा जीरो होने चाहिए, तो यू आर राइट, परफेक्ट, इट्स अ डेरिवेशन ऑफ दैट। जो इक्विलिटी मैट्रिक्स समझ गया? इट्स नॉट अबाउट नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना ही चाहिए, ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, लेकिन
एलिमेंट ऑल्सो हैज टू बी एग्जैक्टली सेम। इनफैक्ट नेगेटिव भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे 3 और यहाँ -3 हो गया, नहीं चलेगा। इट हैज टू बी एग्जैक्टली सेम। तो हो गया इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स, सिंपल एकदम। उसके बाद आता है एडिशन सब्ट्रैक्शन। बिल्कुल जो हम लोग बचपन में एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं वही मैट्रिक्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन है। फॉर एग्जांपल लेट मी राइट, बट आई शुड स्टिल डू इट बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ द कोर्स, बट एडिशन सब्ट्रैक्शन इज अ वेरी वेरी इजी थिंग। सपोज इफ आई से ये एक मैट्रिक्स है, say 1 4 2 3, इसको ऐड कर रहे हैं हम इस मैट्रिक्स से, say 4 -2 0 and 3। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दो, हो गया काम बस। ऐड ओनली द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, मतलब 1 + 4 तो 5, 4 -2 तो 2, 2 + 0 2। बिल्कुल सिंपल, इसका बच्चों वाली बात है। 3 + 3 6, मतलब उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दो तो एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्ट कर दो तो सब्ट्रैक्शन हो गया। मतलब दोनों मैट्रिक्स का मतलब ऑर्डर सेम होना पड़ेगा पहले। ऑर्डर सेम होना पड़ेगा, वेरी नेसेसरी। इसको ऐसा नहीं कर सकते जैसे कि, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन है। हमको ऐसा नहीं कर सकते कि अरे सर उसमें हो, जैसे सपोज मैंने मैट्रिक्स दिया है 2 5 1 4, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल टू क्लैरिफाई डाउट। और सपोज दूसरा मैट्रिक्स मैंने लिखा 5 3, तो कोई बोलेगा अरे सर कोई बात नहीं, ये ऊपर ऊपर ऐड हो रहा, नीचे ऐसा नहीं होता है। यू कैन नॉट से कि सर नीचे कुछ नहीं है तो 0 है, कुछ नहीं है तो 0 इज डिफरेंट थिंग, करेक्ट? No elements and 0 elements are different thing. We cannot say Okay, sir. so you cannot add. You will say invalid operation. You cannot add. Definitely order is very important. Order is very very important. Addition करो, subtract करो. But और obviously हाँ, पर इसमें एक और चीज है, यहाँ पे जरूरी है स्क्वायर मैट्रिक्स हो। For example, if I write a matrix like this 1 4 5, I say add with 2 3 1, I can do that. एक ही रिक्वायरमेंट है, ऑर्डर शुड बी सेम। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, स्क्वायर का रिक्वायरमेंट भी नहीं है, क्योंकि एलिमेंट टू एलिमेंट ऐड करना है बस। 1 को 2 से कर दो, 4 को 3 से कर दो, 5 को 1 से कर दो, सिंपल है। ऐसा भी Yes, नहीं कर sir. सकते हैं कि सर बोल रहा है अरे सर ये भी देखो सेम ही तो है, उसको ऊपर से नहीं, उसको ट्रांसपोज कर दिया। ट्रांसपोज हम पढ़ेंगे बाद में। कोई बोले सर ये देखो एक ही तो बात है, सिर्फ हम लोगों ने उसको ट्रांसपोज कर दिया है, पर ऐसा नहीं है। यू कैन नॉट, कैन यू ऐड दिस मैट्रिक्स? No, sir. वी कैन नॉट, So we can't. वी कांट। मेन पॉइंट है ऑर्डर डिफरेंट है, ऑर्डर के अलावा कुछ नहीं चलता है। प्लस हो या मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, प्लस हो या माइनस हो, वी कैन नॉट डू, वी कैन नॉट। क्लियर एवरीवन? यस सर। Addition, Yes, sir. subtraction. Now there is something called multiplication by scalar. Multiply by scalar मतलब क्या? मतलब ये हुआ कि सपोज मैं बोलूं कोई एक मैट्रिक्स है A, सपोज इफ आई से माय A मैट्रिक्स इज से, अच्छा प्रॉपर मैट्रिक्स ही बनाते हैं इससे। सपोज माय A मैट्रिक्स इज 1 0, कि सब जो डिटरमिनेंट करेंगे सब काम आने वाला है। सपोज ये मेरा A मैट्रिक्स है, कोई somebody says find out 3A, तो 3A मतलब कि 3 मल्टीप्लाई, Each देखो element multiplied by 3. 12 minus. 3A means 3 is the scalar, 3 is multiply the matrix A, तो कुछ नहीं होना है, obviously each of the element is multiplied by 3, that's it. So 3 को 1 से किया तो 3, 3 को 0 से किया तो 0, 3 को 4 से किया 12, 3 को 2 से किया -6 -2, that's it. तो जैसा इस मेरे ख्याल लास्ट की चीजें भी बच्चों वाली है, बिल्कुल सिंपल जो बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन, बट यू शुड नो एलिमेंट टू एलिमेंट मैपिंग होना चाहिए। एनी क्वेश्चन ऑन दिस टिल नाउ? No, I'll ask you questions. No, I'll ask you like 5-10 minutes, lot of questions. Let's see how many can you solve it, okay? Let me get some question if I have something. चलो इसका आंसर बताओ, let's see. Simple question लिखता हूँ, people will write answer on the chat. Take your time, there is no hurry. Say if a matrix has 8 elements, what are
possible orders it can have. बताओ. Keshav is fast, Suryansh is fast. इतना ही हो सकता है सूर्यांश बस. Bunty says 18812442. Okay. लोहित रंजन से भी इतना ही हो सकता है 2442. हाँ 1881 also. Yes. So you're writing one by one. Okay. Suryansh, yes. So obviously 8 elements total है. जो मैंने शुरू में बताया था 8 elements सिंपल रूल है, तो या तो 1 by 8 हो सकते हैं या 8 by 1. बोथ आर डिफरेंट. यू कैन नॉट से कि सर इट्स ए ऑर्डर इज डिफरेंट, या 2 by 4 या 4 by 2. सिंपल था. ओके, रेडी फॉर नेक्स्ट चैलेंज. इफ आई से construct a 2 by 3 matrix such that I want you to solve this. Okay, I have to write like this only. Aij is equal to 2i minus j. लोग लिख के दिखाओ मैट्रिक्स. अगर चैट में लिखना मुश्किल है तो यू राइट रो वाइज एलिमेंट की. सर फर्स्ट रो में ये होगा, सेकंड में होगा, थर्ड में होगा. ओके, जो भी है. लेट्स सी हु कैन डू इट. इसको क्लियर आएगा. आईजे वाला फंडा सारा कि आई क्या होता है, जे क्या होता है, आईजे एवरीथिंग विल बी क्लियर. या राइट द वे केशव इज राइटिंग सो दैट सो दैट इट शोज क्लियरली. ओके, कि पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो. ओके, सबसे पहले तो बनेगा ये 2 by 3 मैट्रिक्स. 2 by 3 मैट्रिक्स मतलब एक एलिमेंट क्या आएगा, एक क्या आएगा, 6 एलिमेंट आएंगे. राइट, 2 by 3 मैट्रिक्स, 6 एलिमेंट. पहला क्या होगा, आई एल जे बोथ आर 1 1, 2 minus 1 1. फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सो आई इज 1, जे इज 2, so 0. देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, आई इज 1, जे इज 3, 2 minus 3 minus 1. परफेक्ट. अब आया सेकंड रो फर्स्ट कॉलम. सेकंड रो मतलब आई इज 2, जे इज 1, कॉलम 1, so 2 2 4 minus 1 3. देन सेकंड रो second column, both are 2, 4 minus 2 2. And lastly second row third column, so 2 and 3, 2 2 4, 4 minus 3 1. You are right. 1 0 minus 1 3 2 1. This just to practice so that you understand कि मैट्रिक्स अगर किसी ने नहीं किया है, you can get the basics. Easy. Yes, Suryansh. Everybody got same, right? It is only 2 by 3 matrix. I never said 3 by 3, guys. So be very careful. Let's try one more. Suppose if I say, we're running short time, but guys, we'll take 5 minutes more, okay? So suppose if I say, let me get from my book some question. Okay. I'll write the question and tell you what is required there. This is my A matrix. I have many books, Bunty, many books. A is x minus 2, 3, 2z. Okay, let me use this. A is x minus 2,
3 2G, then 18G y plus 2 and 6G. Okay, that is my A, and I am saying B matrix. Okay, B is equal to and B equal to what is that? Y Z 6 Y Z. It's a very easy question again. 6Y X 2Y. Okay. Now, if I say find value of X, Y, and Z if A is equal to 2B. Tell me now, guys. Actually, A equal to B. Make it simple. Okay, A equal to B. I don't want to change. Very easy. Tell me how will you do? If A is this, B is this, and A equal to B, what is the value of X, Y, and Z? हाँ, Z3 सामने दिख रहा है, करेक्ट. Y equal to 9, correct. X equal to 11. Very easy, simple, basic maths है. कुछ it's not a big deal, right? Let me see anything else. Any? I'm going to give you one difficult question. Looks difficult but very easy. This is correct, guys. So, okay, we'll move on. Answers everybody got same. Z equal to 3, Y equal to 9, X equal to 11. Okay. Now, if I say construct a 2 by 3 matrix such that I just want to see how you do it. That's it. And if I say A of ij is given by, you know, exponents, right? 2jx multiply with sine of xj. Sorry, 2ix. Where is I here? Doable, right? So either you can do at home and tell me tomorrow, or you want me to now tell me. That's all. Construct 2 by 3 matrix with these elements. Homework. So just note down this, guys. Tomorrow you can just take a screenshot of this so that we save time, and tomorrow we can discuss this quickly in 2 minutes first, and then we can go for tomorrow. We're going to do multiplications and then much more operations. Okay, multiplication is a big task, and after multiplication only all this transpose, adjoint, and all these efforts inverse, right? So good enough, everybody. Any questions before we close today's session? सर जी वो एक बार वो पहले वाला क्वेश्चन बता दो एक बार. कौन सा वाला? x plus z equals to 3 वाला. लेट मी सी. अंडू होता है क्या इसमें? पूरा आ जाता है क्या? यस. आंसर करना है इसका? यस सर. देखो क्या होगा, हमको पता है कि मैट्रिक्स आर इक्वल ओनली व्हेन कॉरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर इक्वल.
तो आई डायरेक्टली हम्म। पिक द एलिमेंट जो ज्यादा इजी लग रहा है मुझे। यहाँ पे जेड दिख रहा है, यहाँ 3 दिख रहा है, तो जेड तो 3 होना है, क्लियर दिख रहा है, राइट? यस। चलो अब वाई, ये 2y दिख रहा है, यस सर। 2y मतलब 6z और z 3 है, तो 6 3 18 हो गया, यस सर। तो 2y is 18, तो y कितना हुआ? 9। एग्री? यस सर। अब y मिल गया, z मिल गया, अब ऐसा ढूंढो तो इजी है। देखो ये मुझे इजी दिख रहा है, x - 2 और y इजी दिख रहा है ना? यस y यस। 9 है, मतलब x - 2 = 9, तो x = 11। करेक्ट? ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर। So everybody, that's all. See you tomorrow. We'll start exactly at 2 p.m. सर Won't be late. Yes, please. और एक बार ये समझा देंगे सर? ये वाला हाँ जी सर। देखो, दो मैट्रिक्स बराबर कब होता है? जब जी। उसके रेस्पेक्टिव एलिमेंट इक्वल होते हैं। मतलब कि ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट बराबर है, करेक्ट? हाँ जी जी सर। तो पहले मैंने इजी वाले लिए। कौन सा इजी वाला लिया मैंने? ये दिख रहा है तुम्हें z, जी तो ये किसके Z बराबर होगा? इसके बराबर होगा, जी जी तो डायरेक्ट आंसर आ गया ना। जी हाँ सर। अब z आ गया। जी अब ये देखो, ये 6z और 2y बराबर हो गए ये दोनों, जी तो z कितना है? 3 है। तो 6z कितना होगा? 3। 18। जी तो 18 मतलब 2y 18 हुआ ना, 9 होगा। हाँ 2y 9 हो गया। जी अब x बचा है, तो x जी सर। मैंने कौन सा लिया? ये वाला लिया है सबसे। x - 2 शुड जी इक्वल टू y, जी और y कितना था? 9 तो x = 9 2 हाँ 11 जी सर। Okay guys, my next class is going to start, so only late by 5 minutes. See you tomorrow. Bye bye. Have a nice time. Thank you. थैंक यू सर। Thank you. Thank you.